Today, we will start chapter 3rd, shares and dividends. From ML Agarwal for class 10th for ICSE. This is the lecture number 2 of session 2025-26. First 6 sums we have done in first lecture. Now we will start from question number 7. This is the 7th sum. What sum should a person invest in rupee 25 shares, selling at 36 to obtain an income of 720? If the dividend declared is 12%, also find the percentage return on his income. What sum should a person invest? We have to find the money invested in rupee 25 shares. Yes, Mannat, what is rupee 25? Mannat, what is rupee 25 is? No? Parneet? Sir, nominal value. Yes, this is a nominal value. Selling at 36. Then what is 36? Sir, MV. MV. MV की full form? Market value. To obtain an income of 720. What is 720? Sir, dividend. Dividend received or in total income. Rate of dividend is 12%. Also find the percentage return. एक तो मनी इन्वेस्टेड फाइंड करना है और दूसरा परसेंटेज रिटर्न ये फाइंड करना है. कर लो बच्चे. हाँ जी, सबसे पहले यहां पे हमें नॉमिनल वैल्यू गिवन है rupee 25. Selling at, that is the market value, that is given rupee 36. Dividend percentage, that is given 12%, and income or dividend in rupees, that is rupees 720. We have to find the money invested. Then what I can do, Parneet? सर नंबर ऑफ शेयर्स तो दिए नहीं हुए. तो फिर क्या करें? उसको हम क्या लेट कर देते हैं? X. एन लेट कर. एन N. N. मतलब डिविडेंड इन रुपीस का फॉर्मूला बताइए. एन इंटू N into NV नॉमिनल वैल्यू into इंटू dividend percent. रेट ऑफ डिविडेंड और डिविडेंड परसेंट, दैट इज 720. हरिदान, ये फॉर्मूला याद रखना बच्चे, क्योंकि आप अभी न्यू हो, तो ये मेन फॉर्मूला है डिविडेंड इन रुपीस का. ओके सर. आज शायद कुछ ना समझ आए, बट कल से समझ आ जाएगा सारा कुछ. ओके सर. 25 4 जार 4 3 जार, एन की वैल्यू क्या आ गई? 720/3. 3 2 जार 4 240. तो नंबर ऑफ शेयर्स आर 240. But what they have asked, they asked to find the money invested. Yes, Parneet, then how we can find the money invested? Number of shares into market value. Now, n into market value. Number of shares we have already find, that is 240, and the market value is 36. Multiply these two. 36 into 24. 6 4s are 24. 2 carry. 12 12 24 to 26. 2 carry 6 to 8.
rupee 8640. That is the money invested. Second thing, they asked to find the return percentage. Yes, equal to. Yes, Parneet. Return percentage is equal to. No. Yes, Ambhavi. So return percent equal to dividend by investment into 100. Very good. Dividend received is 720. ठीक है परनीत. Percentage find करना है into 100 upon investment, that is 8640. 0 से 0 कट. I think so. 8 के टेबल पे काट दो. 8 9 जा 8108. फिर से 9 के टेबल पे कट हो रहा है 12. अभी 4 के टेबल पे 25 and here 3. 25 upon 3%. Mixed fraction 8 1 by 3%. डेसिमल में करना है, अब डेसिमल में कर दो. फॉर्मूला याद रहेगा रिटर्न परसेंटेज का. डिविडेंड रिसीव्ड मतलब रुपीज वाला इंटू 100 अपॉन मनी इन्वेस्टेड. ओके, अब Yes, याद sir. रखना है इसको. रिटर्न परसेंटेज डिविडेंड की जगह इनकम भी बोल सकते हैं हम. इनकम इंटू यहाँ पे रिटर्न परसेंट की जगह इनकम परसेंटेज भी बोल सकते हैं. वो रिटर्न परसेंटेज और इनकम परसेंटेज दैट इज द सेम थिंग. आज सर रोहिन. हाँ जी. सर मार्केट वैल्यू नहीं होना चाहिए. हम बच्चे यहाँ पे एक शेयर का डिविडेंड नहीं निकाल रहे ना हम. सारे शेयर्स का डिविडेंड दिया हुआ है ना 720. तो मनी इन्वेस्टेड क्या है? सारे शेयर्स की मनी मार्केट वैल्यू ही हो गई. यस सर. ठीक है. आज तू गायब क्यों है रोहिन? सर कैमरे में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ऑन नहीं हो रहा. दीवार पे मार खींच के. किसका, लैपटॉप का कि मोबाइल का? सर अलग से कैमरा है, लैपटॉप में कैमरा नहीं है. अच्छा, अलग से कैमरा है. चल. एट सम. यस, संभवी. हाँ सर. अशोक इन्वेस्ट rupee 26,400 on 12% rupee 25 shares of a company. 26,400 is Investment. what is 12%? Dividend rate, then 25 rupees है nominal value. फिर dividend in rupees है 2,475 rupees. Number of shares bought, market value of each share. हाँ. तो यहां पे 8 सम. हमें मनी इन्वेस्टेड गिवन है ₹26,400. रेट ऑफ डिविडेंड दैट इज डिविडेंड परसेंट गिवन है 12%. 25 shares of a company, nominal value ₹25. And the market value we have to find. मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया. डिविडेंड इन रुपीज हमें गिवन है, दैट इज 2475. नाउ व्हाट आई कैन डू? तो फर्स्ट डिविडेंड की वो फॉर्मूला लगाना है. डिविडेंड इक्वल्स टू नॉमिनल सॉरी डिविडेंड इन रुपीज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड. इनटू नॉमिनल. मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. नंबर ऑफ शेयर्स आर नॉट देयर. डिविडेंड इज 12%, 12 by 100. Nominal value is 25. 25 4s are 4 3s सर are. 825 आ रहा है आंसर.
नंबर ऑफ शेयर्स आर 825। पहला पार्ट का आंसर हमारा आ गया, उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए बोला था। अब सेकंड, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, हाउ वी कैन फाइंड? Investment by number of shares. मनी इन्वेस्टेड By number of shares. upon number of shares. Money invested 26400 upon 825. कट करो इसको, कितना आएगा जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? सर 32। पीछे से आंसर देख के तो नहीं बोल दिया? नो सर, मैंने किया है। सॉरी, तो रुपी 32 इज द आंसर। समझ आया बच्चे ये? Yes, sir. Sure. Now we'll reach on question number 9. तो परिधि, यस सर। a man invests rupee 4500 in a share. एक मिनट क्वेश्चन रीड करने दे पहले। मुझे पता है तुम्हें आने लग गए, मेरे साथ रह के तुम सारे इंटेलिजेंट हो गए हो। संगत का असर तो होता ही है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। A man invests rupee 4500 in a share of a company which pays 7.5% dividend if rupee 100 share are available at a discount of 10%. What is 4500? The money invested. What is 7.5%? Dividend rate. What is 100? The market value. Discount 10%. So this is a nominal value. Sorry, nominal value. And we have to find the market value. First of all, the things which are given, money invested is given rupee 4500. Second, rate of dividend percent is given, that is 7.5%. बच्चे वीडियो ब्लर कहाँ है? सर अभी हो रहा था, अब हो गया सही। वो तो पेज टर्न करते हैं तो हो जाता है कई बार। नॉमिनल वैल्यू इज रुपी 100, तो डिस्काउंट 10% है, तो मार्केट वैल्यू क्या आएगी परिधि? सर 100 minus 10% of 100. 100 डिस्काउंट 10 था, माइनस 10 हो गया, डिवाइड बाय 100%, सिंबल हटाया तो नीचे 100 आ गया, इनटू नॉमिनल वैल्यू 100 minus 10, rupee 90 is the market value. What they have asked, first part, number of shares. Yes, किसके इक्वल होगा नंबर ऑफ शेयर्स? सर मनी इन्वेस्टेड इक्वल नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू होता है, तो सर फॉर्मूला मैंने ऐसे सीधे याद किया। कोई बात नहीं, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बताइए। सर नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 4500 डिवाइड बाय 90। मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू 4500 अपॉन 90, 9 5s are 45, 50. तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज आर 50. एंड द सेकंड हिज एनुअल इनकम। देखो लैंग्वेज, मैं यहाँ डिविडेंड इन रुपीज नहीं डाल रहा, जैसे ही उन्होंने लैंग्वेज लिखा है मैं यहां कॉपी पे भी सेम टू सेम एनुअल इनकम। यस, नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड रेट इनटू नॉमिनल वैल्यू, तो 50 इनटू number of shares already find, rate of dividend 7.5%, that is 75 by 100। 1000 हाँ 1000 into नॉमिनल। nominal 100. 5 5s are 25, 35 to 37. Annual income is rupee 375. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चे? यस सर। यस सर। रिजान सिर्फ ट्यूसडे को 9 o'clock लगा करिएगा बच्चे क्लास, बाकी दिन 7 o'clock।
ठीक है। ओके सर। ये ना हमारी एक ये कौन सी किधर गई, वो गायब हो गई। हाँ, संभवी, इसने हमें बहुत तंग किया है। अरे सर, क्या तंगी किया है? मैं ना आज मूवी देख रहा था, मैंने पहले तो मूड था कि छुट्टी कर दूं, मैं नहीं, अभी नहीं, क्योंकि 18-19 को मैंने फिर छुट्टी करनी है, वैष्णो देवी जाना है, मत्था टेक के आना है। हाँ जी। मुझे ब्लेस करना उधर से भी। हाँ श्योर, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ रहेंगे। हाँ सर, और भगवान के आशीर्वाद भी मेरे लिए ले आना सर। हाँ, आ जाना। सर मेरे लिए भी। सबके लिए है, बस मैं सही सलामत रहूं तो सब कुछ आ जाए, हो जाएगा। 10th, Amit Kumar invest rupee 36,000 in buying 100 rupee shares at 20 premium, rupee 20 premium। तो ये मुझे रोहिन करवाएगा। रोहिन, अमित कुमार इन्वेस्ट रुपी 36,000। यस सर। What is 36,000? सर मनी इन्वेस्टेड। Buying rupee 100 share, what is 100? सर नॉमिनल वैल्यू। At rupee 20 premium, तो मार्केट वैल्यू क्या आएगा? सर 120। The dividend is 15%. Find the number of share, yearly dividend, percentage return। चलो, 10 sum, money invested, rupee 36,000, buying rupee 100 share, nominal value is rupee 100। तो मार्केट वैल्यू क्या आएगा? रुपी 20 प्रीमियम पे परचेज किया है। देन व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, रोहिन? सर 120। 100 प्लस प्रीमियम 20, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो वी गेट रुपी 120। रेट ऑफ डिविडेंड इज गिवन, डिविडेंड परसेंट, दैट इज गिवन 15%। नंबर ऑफ शेयर्स, पहला पार्ट, हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स? सर मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। मनी इन्वेस्टेड हमारे पास 36,000 है, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू 120 है। 12 3 जा 36, 0 0। तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज आर 300। सेकेंड पार्ट, हिज ईयरली डिविडेंड। देखो यहां पे भी फिर मैं लैंग्वेज वैसी ही लिख दी, जैसे उन्होंने लैंग्वेज दी है वैसे, ईयरली डिविडेंड। यस, सर नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। इनटू नॉमिनल वैल्यू। पहले फॉर्मूला लिखना है ऑलवेज, कई जगह पे मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे टाइम सेव करने का होता है। नंबर ऑफ शेयर्स वी हैव फाइंड 300, rate of dividend is 15%, 15 by 100, and the nominal value is also 100। Two zeros are cancelled, 15 threes are 45, साथ में 2 zeros। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट का आंसर, परसेंटेज रिटर्न। यस बच्चे। सर मनी इन्वेस्टेड। हाय हाय रोहिन, सर डिविडेंड अपॉन मनी इन्वेस्टेड इंटू 100। मैं साथ में जाऊंगा, एग्जाम में है रोहिन? नहीं सर। नहीं जाऊंगा ना। डिविडेंड received is, this is 4,500, we have to find the percentage, so into 100 upon money invested, that is given 36,000। two zeros, third zero, किसके टेबल पे कट करें? 36, 12.5%। कितना? 12.5, परसेंट होगा। 12.5 आएगा। मैंने, चलो 25/2 आएगा तो 12.5%। देख परिधि, संभवी की तरफ, पहले दिन कैसे बिग्गी बिल्ली बन के बैठी हुई थी ये,
अब देख फटाफट पटक 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 बोलती है। मैंने पहले दिन ही बोला था कि ये बहुत तेज है, बस फर्स्ट डे का थोड़ा सा इसको वो था फोबिया। वेरी गुड संभवी। थैंक यू सर। अरे, ये ना मेरे को इप्सिता जैसी लग रही है आज, तो ज्यादा ही नटखट हो गई है। इप्सिता को तो जानती होगे। क्या सर? इप्सिता को जानते हो? इप्सिता, नहीं तो। अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो पक्का जानते होगे। ओ, शायद बस मैं मैथ सम्स करने में इतना इन्वॉल्व, तो मैं देखी नहीं। बाकी क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी। हमारे क्लास की सबसे शरारती लड़की थी वो, मतलब मन लगा के रखती, सबका जोड़ के रखती थी वो। अच्छा, देखूंगी बाद में सर, अगर मिले तो। मिस्टर तिवारी, बहुत सी वीडियोस में होगी, सबसे ऊंची आवाज उसकी है। मिस्टर तिवारी invested rupee 29,040 in 15% rupee 100 shares at a premium of 20%. Mr. Tiwari invested. Yes, Mannat. What is 29,040? Money invested. 15%, Dividend percent. rupee 100 Nominal value. at a premium of 20%. Find the Yes, number sir. of share bought by Mr. Tiwari. Mr. Tiwari income from the investment, the percentage return. वैसे तो सेम है, पर फिर भी चलो हम कर लेते हैं। मन्नत का टर्न है। यहाँ पे सबसे पहले जो चीजें हमें गिवन है, मनी इन्वेस्टेड ₹29,040, 15% द रेट ऑफ डिविडेंड, 100 is the nominal value at a premium of 20%. Then how we can find the market value? Sir, 100 plus 20% of 100. हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, जैसे डिस्काउंट होता है तो माइनस हो जाता है, प्रीमियम है तो प्लस हो जाएगा, इनटू नॉमिनल वैल्यू दैट इज 100. 100 plus 20 we get 120. जैसे आपने बताया था वो भी सही है, 100 plus 20% of 100 that is also correct. मार्केट वैल्यू आ गया। तो पहला पार्ट, दे आस्क टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स बॉट। यस मन्नत, Sir, money नंबर ऑफ invested upon market value. मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर 120, जीरो से जीरो कैंसिल, आई थिंक सो ये पूरा पूरा कट होना चाहिए। 12 2 24, 50, 12 4 48, 12 2 the number of shares bought are 242. First part का आंसर। इनकम, yes, Number of shares into nominal value into dividend percent. number of shares are 240, rate of dividend 15%, 15 by 100 into nominal value that is also 100. Multiply these two, 15 to the 30, 3, 63, 6, 36. This one. Third part, percentage return. Yes, Vichi. Dividend upon investment into 100. डिविडेंड और इनकम इनटू 100 अपॉन मनी इन्वेस्टेड, वो हमें गिवन है। कर लोगे इसको कैलकुलेट बच्चे? Yes, sir. परसेंटेज में आंसर आएगा इसका। अगर आपने परसेंटेज सिंबल ना डाला तो हाफ या 1 मार्क कट हो जाएगा। ओके, मन्ने तू पढ़ने कब से लग गई? क्या सर? तूने पढ़ाई कब से स्टार्ट कर दी? सर, मैं तो बचपन से पढ़ती हूँ। नहीं, मेरे को तो आज ही पढ़ के दिखाया तूने। वो आपको नहीं दिखा तो मैं क्या करूँ, लेकिन मैं तो पढ़ती हूँ बचपन से। कल से पढ़ती है? चलो गुड।
हाँ जी, हमारे हरिधान जी, यस सर। कुछ समझ आया कि नहीं आया? सर ये फॉर्मूलाज तो समझ आ रहे हैं, पर दिक्कत ये है कि अभी आ हमको जाए, कोई पहचान बात में नहीं, नहीं है। आएगा, अभी परेशानी आएगा। ट्राई करो, मैं बैठा हूँ साथ में, मैं बता दूंगा नहीं तो, ठीक है। ए मैन बाय शेयर्स एट पार। एट पार का मतलब होता है जहां पे नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती है, ओके। ठीक है। प्रीमियम का मतलब कॉस्टली परचेज किया, डिस्काउंट का मतलब नॉमिनल वैल्यू से सस्ता परचेज किया। ठीक है। ए मैन बाय शेयर्स एट पार, वैल्यू ऑफ ₹100, मतलब नॉमिनल वैल्यू भी 10 है, सॉरी 10, मार्केट वैल्यू भी 10 है। यील्ड्स 8% डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड 8% गिवन है, ठीक है। एट द एंड ऑफ अ ईयर फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इफ यू रिसीव ₹300 डिविडेंड। देखो, nominal value, market value are same, dividend percentage is given, annual dividend is given, dividend received और income is given। तो यहां पे कोई बात नहीं, ट्राई मैं लिख देता हूं, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹10। मैंने दोनों पैरेलली इक्वली लिख दिए। रेट ऑफ डिविडेंड मतलब डिविडेंड परसेंट इज गिवन 8% एंड डिविडेंड इन रुपीज गिवन है हमें। सबसे इजी सम है 300। तो यहां पे वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स एंड वी हैव टू फाइंड डिविडेंड इन रुपीज का फॉर्मूला हरिदान, सर डिविडेंड इन रुपीज का फॉर्मूला एन नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड मींस डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू, ओके। ओके सर। एंड वी हैव टू फाइंड डिविडेंड इज 8%, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? डिविडेंड इज 8%, तो 8 यहाँ बाय पे क्या 100। लिखूं? वेरी गुड। एंड द नॉमिनल वैल्यू? नॉमिनल वैल्यू इज 10 रुपीज। वेरी गुड। कुछ नहीं, देखो जो चीजें गिवन है पहले वो सारी लिख लो, उसमें देखो फॉर्मूला कौन सा है, इसका फॉर्मूला बन रहा है, उसके नीचे उसका फॉर्मूला लिख दिया। अब जो वैल्यू फाइंड करनी है एंड फाइंड करना है वो सेम टू सेम रहेगा, बाकी सबकी वैल्यूज फिल हो जाएंगी। अब लीनियर इक्वेशन आई थिंक सो सबको सॉल्व करना आता है। 5 एंड 300, 5 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। 75। ये पक्का इसने ना आंसर देख देख के हो रही है ये। सर मेरे पास बुक भी नहीं है। पीडीएफ में से देख लिए होंगे, पर मैंने आंसर नहीं भेजा ना। हाँ ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट आर 375, ये आंसर आ गया। चलो गुड, वेरी गुड मन्नत, ऐसे पढ़ते रहना है, ठीक है, छुट्टी नहीं मारनी बस। सर तेरी अभी छुट्टी, मार। अब तेरी छुट्टी कर दूंगा नहीं तो मैं, अगर तूने हाँ। छुट्टी मारी। तेरी मम्मी ने भी बोल दिया अब तो कि बस ये लास्ट चांस है, 2 दिन दे दो, इसके बाद अगर छुट्टी मारी तो इसकी छुट्टी कर देना। हाँ जी, परनीत, यस सर। नींद आ रही है? नहीं सर। मेरे को तो बहुत आ रही है। ये ना संभवी ने बहुत तंग किया हमें। हाँ सॉरी जी, सर। चलो मजाक कर रहा हूँ। A man invests ₹8,800 on buying share of a face value or nominal value is the same thing. A man invests ₹8,800 on buying shares of face value of ₹100 each at a premium of 10%. If he earned ₹1,200 at the end of a year as dividend, find the number of share bought, dividend percentage per share. देखो, a man invests ₹8,800, money invested ₹8,800,
नॉमिनल वैल्यू रुपी 100 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगा? सर 100 + 10 / 100 × 100। वेरी गुड। देखो प्रीमियम का मतलब कॉस्टली, +10 अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू 100, 100 से 100 कट गया, रुपी 110 आ गया। If he earned rupee 1200 at the end of year as dividend, dividend received is given rupee 1200. The number of shares, same formula, मनी इन्वेस्टेड अपॉन number मार्केट of shares into क्या सर है? डिविडेंड परसेंटेज नहीं दिया। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं दिए। अब क्या करें? सर मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। हाँ जी, फंसी नहीं ये जाल में। 8800 अपॉन 110। सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे। कैसे? मनी इन्वेस्टेड पता है, मार्केट वैल्यू पता है, डिवाइड करके 80 n इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू इज 1200। पहले पार्ट का आंसर तो हमने फाइंड कर लिया 80, और सेकंड डिविडेंड परसेंट निकालना है। डिविडेंड अपॉन 100 into nominal value 100 is 1200. 100 से 100 कट गया, डिविडेंड परसेंटेज इज 1200 अपॉन 80। 8 1 जा 8, 8 5 जा, डिविडेंड परसेंटेज इज 18% or 15%. That is the answer. Okay? ओके सर। संभवी, हाँ सर। एक मिनट रुको। What is a man invests 4500 in 15% 100 share quoted 125. When the market price of these shares rose to 140, he sold some shares just enough to raise 8400. Calculate the number of shares he still hold, the dividend due to him on these shares. A man invested 45,000. इन्वेस्टमेंट 45,000। एक 45,000 मिनट, हाँ 45,000 money invested is given 45,000। 45,000. 15% is the rate of dividend. नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू 125 रुपीज। फर्स्ट करी बस अब यहाँ पे ना एक चीज नोट डाउन करो, मतलब 100 वाला शेयर कॉटेड एट 125, मतलब 125 में मिल रहा है, तो दिस इज द मार्केट वैल्यू. When the market value of these shares rose to 140, he sold some shares just enough to raise 8400. इसका मीनिंग क्या हुआ? Just enough to raise 8400. मतलब डिविडेंड इतना इंक्रीज हुआ 8400 जितना थे तब से। नहीं बेटा, he sold some shares just enough to raise 8400. Paridhi, what it means? सर इनकम और एनुअल इनकम। सर कैन आई? हाँ जी,
सर ये उसने जो शेयर्स जो सेल करे हैं ना, उसकी मार्केट वैल्यू है ये। हाँ जी, बिल्कुल सही है। मतलब इसका मतलब क्या है? ही सोल्ड सम शेयर जस्ट एनफ टू रेज का मतलब कलेक्ट करने के लिए। उसकी जेब खाली हो गई थी, कहता मुझे कुछ पैसे चाहिए 8400, तो उसने 140 के हिसाब से कुछ शेयर सेल कर दिए कि उसके पास 8400 मनी आ गई। समझे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड, कितने शेयर अभी भी उसने होल्ड किए हुए हैं, डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दीज शेयर्स। तो चलो सबसे पहले यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करो। Investment by market value. Money invested is 45,000 upon market value is 125. Cut these 125, 3s are 375. कितना आएगा जल्दी से बताओ? 360. पक्का? Yes, sir. भरोसा कर लूं तेरे पे? Yes, sir. पक्का? चलो, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट 360 आ गया, उसने टोटल 360 शेयर्स परचेज किए थे। लेट नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड एक्स। देखो संभवी नहीं, किसकी टर्न थी? संभवी की थी। नंबर ऑफ शेयर सोल्ड मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिए। यहां पे जो एमवी था दैट इज द कॉस्ट प्राइस। अब जो मैं एमवी लिखूंगा दैट इज द सेलिंग प्राइस। कितने में सेल किया था उसने ईच शेयर? 140 में। तो अब क्या करें? सर ये थोड़ा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का एक बार और बता दीजिए। बच्चे, जब आप कोई चीज परचेज करते हो, इस रेट पे परचेज किया तो वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया ना? सर लेकिन परचेज तो उसने 100 रुपीज पे किया था ना। नहीं बेटा, वो तो फेस वैल्यू है ना, नॉमिनल वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू पे कभी परचेज नहीं होता, हमेशा मार्केट वैल्यू पे परचेज या सेल, ऑलवेज ऑन द मार्केट प्राइस। ठीक है? जब उसने परचेज किए थे उस टाइम रेट चल रहा था 125, जब उसने सेल किए उस टाइम रेट चल रहा था 140। ओके, तो यहां पे बहुत इजी है संभवी, बताइए। यू वांट टू रेज 8400, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। किसी ने नहीं बोलना, और संभी भी बताएगी। सर फर्स्ट क्या हम डिविडेंड इन रुपीज निकाल सकते हैं वो छोड़ दो, क्या? ये ले, ये जितना तेरे को दिख रहा है इसमें ही है सारा कुछ, ऊपर वाला कुछ नहीं यूज करना। अच्छा, तो बोलना नहीं इधर किसी ने भी, ओनली इधर से संभवी। इन्वेस्टमेंट आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। That is not the investment. Now he is selling. So that is the money received. 8400 रिसीव करना है उसने, हम्म x into 140। 60 आंसर। समझ तो नहीं ये आया इन्वेस्टमेंट संभव? नहीं है, पर हाँ मतलब मैं जो बोली हूँ वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूला में आएगा, पर ये मैं थोड़ा समझी नहीं उतना। सर मुझे भी नहीं आया समझ में। बताता हूं। एक चॉकलेट आपने 10 रुपए का परचेज किया था, बट सेल करते टाइम आपने सेल कर दिया 15 का। जब आपने परचेज किए थे तो जितनी टोटल मनी थी आपके पास, मान लो 45,000 थे, उसके टोटल चॉकलेट्स परचेज कर लिए। दिस अपॉन दिस, तो हमारे पास चॉकलेट्स आ गई।
दैट इज द नंबर ऑफ शेयर आ गए। अब जब सेल करना है आपको सिर्फ 8400 रुपीज चाहिए। आपने उतने चॉकलेट ही सेल करनी है कि आपको 8400 रुपीज मिल जाए। समझे? एक चॉकलेट कितने का सेल कर रहे हो? 15 का। तो कितने चॉकलेट सेल करोगे आप? हाँ हाँ, अच्छा, आ गया आ गया। ठीक है सर। ठीक है परिधि, यस देखो सर। आपको 8400 रुपीज चाहिए। एक शेयर आप 140 का सेल कर रहे हो, तो कितने शेयर सेल करोगे कि वो 8400 आ जाए? इनटू ना, आप सीधा भी कर सकते हो, नंबर ऑफ शेयर सॉल्ड 8400 अपॉन 140, 60 is the number of shares sold. But what they have asked, first part में number of shares still hold. Number of shares still hold. अभी भी होल्ड किए हुए हैं। टोटल शेयर्स कितने निकाले थे हमने? 360। 60 शेयर्स उसने सेल कर दिए, कितने बच गए? 300 shares still hold. The dividend due to him on these shares. यहां पे प्रॉब्लम खड़ी कर दी इसने। या हम 360 लेंगे, आंसर निकाल के देखते हैं। डिविडेंड ड्यू, नंबर ऑफ शेयर्स, मैं एक बार 300 लेके चलता हूं क्योंकि दी शेयर बोल दिया ना, बाकी चेक करेंगे आंसर। 50 बाय 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू इज 100, 4500। पीछे आंसर मैं चेक कर लेता हूं क्या दिया है। मगर एक मिनट, थर्ड चैप्टर है ना, थर्ड चैप्टर का कौन सा सम था ये? 14th। यस, सही है। दी शेयर अगर सीधा लिखा होता ना कि टोटल एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड, तो हम 360 लगा लेते शेयर्स। बट अभी दी शेयर जो फर्स्ट पार्ट में शेयर्स फाइंड की है, उसका मतलब ये हो गया। अंडरस्टूड? कोई डाउट किसी को? रोहिन? सर ये डिविडेंड ड्यू वाला बता दो। डिविडेंड ड्यू, डिविडेंड पहले लिया ही नहीं उसने, नहीं लिया ना। नहीं। टोटल शेयर्स कितने थे उसके पास? 360, बट उसने 60 शेयर सेल कर दिए, तो डिविडेंड कितने शेयर्स में मिलेगा उसको? सर 300। 300। डिविडेंड ड्यू या डिविडेंड रिसीव, दैट इज द सेम थिंग। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू, फॉर्मूला। ओके। ठीक है, चलो आज इतनी ही बहुत है, नींद आने लग गई। ये सब मूवी ने बहुत तंग किया हमें। सॉरी सॉरी। सॉरी 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 कुछ नहीं होता, तंग करने के लिए हूं मैं। ठीक है, मैं भी बहुत तंग करूंगा, सुबह 5 बजे भी उठाया करूंगा तुम्हें। हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं। अच्छा, खुश हैं सारे है ना 5 बजे के नाम पे कि उठ जाया करेंगे? तुम खुश हो जा हो, तुम्हारी मम्मियाँ जरूर खुश हो जाएंगी। हाँ सर, कोई बात नहीं, करेंगे सर। कभी भी 2 बजे भी कर सकते, 1 बजे भी कर सकते, कभी भी। कभी भी। ऑलवेज अवेलेबल। सर मैं तो उठता ही हूँ 5 बजे। मैं भी उठता हूँ यार, ऐसे मत करो। परिधि नहीं उठती है ना? सर मैं भी उठती हूँ 5 बजे। सारी मेरी जैसे हो। सर स्कूल का काम करना होता है। अच्छा, सर सुबह मैं उठ के काम करती है? सर मैं कुछ बोलूं? हाँ जी। सर मैं ऑलमोस्ट सोती हूँ 1 बजे। 1 बजे सोती है, 5 बजे उठ जाती है? नहीं, 5 बजे नहीं उठ पाते पर। 5 बजे। क्या क्या वन्नत? मैं भी नहीं उठती 5 बजे क्योंकि मेरे पेपर खत्म हुए हैं अभी, तो उठती हूँ आराम से 7-8 बजे तक। हाँ,
तुझे तो 10 बजे उठेगी, मेरे को पक्का पता है। झूठ बोल रही है, नहीं 7-8 बजे इतना तक। लेट नहीं सो सकते। चलो मुझे ऑलमोस्ट 5:45 या 5:50 के अंदर तो उठ जाती हूँ। ठीक है। देखो हरिदान ना स्माइल दे रहा है, फर्स्ट डे है उसका। ये कल से शुरू होगा थोड़ा बोलना। आज तो चुपचाप है बेचारा, संभवी की तरह। संभवी चुपचाप थी पहले दिन। सर रिधान नाम है। क्या क्या नाम है? रिधान, एच हटा दीजिए। मैं नहीं यार, मैं तो हरिदान ही बोलूंगा, छह जब। एच का जरूरत नहीं है। ठीक है। रिधान, ठीक है। मैं भी सोचूं हरिदान ये कैसा नाम होगा। लगा हुआ है, पता नहीं। पता ही नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं। बाकी रिधान ठीक है अब तो। हाँ अब सही बोला हूँ। रिधान, आज और ये चैप्टर जब तक चल रहा है शायद कुछ ना समझ आए, न्यू चैप्टर से समझ आ जाएगा। ठीक है। और एक क्लासेस डेली लगानी है, चाहे समझ आए ना आए। ये नहीं सोचना है कि ये चैप्टर के बाद लगाऊंगा, फिर आदत पड़ जाएगी कि नहीं कर लेते हैं, कोई बात नहीं, छुट्टी मार लो। ऐसा नहीं करना। ओके। और कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? सर हाँ ये जी। एमएल का पहला बुक लगा रहे हैं आप? मैं सारी बुक ऐसे नहीं लगाऊंगा कि एक पहली बुक के लगवाऊंगा, एक ही करवाऊंगा फिर दूसरी करवाऊंगा। बीच में जैसे 4-5 चैप्टर से इसके करके, उसके बाद 4-5 चैप्टर दूसरी बुक में से, तीसरी बुक में से। सर एसचंद का हो गया है क्या? नहीं कोई नहीं हुआ। एसचंद का तो एक एक दिन में चैप्टर हो जाएगा, इतने छोटे छोटे चैप्टर है उसके। नहीं। सर आप सलीना कब से स्टार्ट करोगे? नेक्स्ट ईयर। करेंगे बेटा, अभी करेंगे। अब मुझे ये बताओ, अभी मेरे को लगता है 2 दिन और लगेंगे इस पे, शायद कोशिश करूंगा कल ही खत्म कर दूं इसको, चैप्टर को। ठीक है। हमारे 4 चैप्टर्स हो गए कितने दिन में? आज 11 हुई है। थर्ड से स्टार्ट किया था हमने। सर ये तो एक थर्ड दिन चैप्टर है। फोर्थ। हमने एक ट्रिग्नोमेट्री भी किया है पहले, ये परिधि ने तंग किया था उससे सर पहले कब बिल्कुल। हुआ ट्रिगोनोमेट्री? तेरे आने से पहले। हाय भगवान। मैं ना मैसेज पे मैसेज डालता रहा कि जिसने ज्वाइन करना है कर लो, जिसने ज्वाइन करना है कर लो। फिर मेरे को धक्के से सबको ऐड करना पड़ा। हाँ। सर रोहिन आप को थोड़ा भी जल्दी तेरे। स्टार्ट कर देना क्योंकि स्कूल में फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। कोई बात नहीं, कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा तेरा। ठीक है, टेंशन ना लो। जिस दिन छुट्टी है, छुट्टियों में तो मैं 3-3 घंटे भी लगाऊंगा तुम्हारे, समर वेकेशन। सर होली के 2 दिन घंटे क्लास बहुत है होगी? छुट्टियों में। होली के दिन मैंने कौन सा होली खेलनी है? शाम को होली खेलते हैं कोई? तो भी उस दिन हम 3 घंटे क्लास लगाएंगे, मेरे को छुट्टी है। मॉर्निंग भी लगाएंगे, इवनिंग में भी लगाएंगे। हाय टेंशन। सर आप होलिका दहन वाले दिन सुबह लगा लेना क्योंकि शाम को फिर पूजा होती है, फिर कैसे होगा? तूने 2 छुट्टियां मारी हैं, एक और हो सही तेरी। कोई बात नहीं, तुम पूजा होली दहन नेक्स्ट डे होता है ना? नहीं सर, होली, होली के दिन पहले होता है। अच्छा, एक दिन पहले होता है। हाँ सर। मॉर्निंग में बेटा नहीं पॉसिबल हो पाएगा, अभी नहीं। या सर आप 9 o'clock पे ही लगा लेना, तब तक तो पूजा हो जाएगी। और रहने दो, 9-9 o'clock पता है कितना टफ सर हो जाता 13 और 14 को क्लास ही मत लगाना। है। मैं भाग ही जाता हूँ, छोड़ देता हूँ। हैं? सर टाइम ही नहीं ऐस मिलेगा 13 14 को। क्यों नहीं मिलेगा? रोहिन, तेरी मामी को फोन कर दूंगा, देख ले मैं। सर कर दूं? बुआ को कर दो। हाँ सॉरी, बुआ को कर सर दूं। कर दो। यस सर। पहले तो वो मेरे को गालियां निकालेंगे, मैं नहीं करता। मैंने पीछे बीच में छोड़ दिया था ना। चलो ठीक है बच्चे, मिलते हैं कल 7 ओके o'clock। सर। थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू। बाय बेटा, बाय बाय।